Hello friends, welcome in RKG biology tutorial. We are going to discuss about photosynthesis. We know green plant, photosynthetic pigment containing green plant with the help of carbon dioxide and water prepare their food. So this process is known as the photosynthesis. And the process of photosynthesis takes place in two main phases, two main stages. One is the light reaction, another is the dark reaction. So we will discuss difference between light reaction and dark reaction. So I write here light reaction and dark reaction. See, light reaction is the first stage, is the first phase of the photosynthesis. So it is the first phase or stage of photosynthesis. And this one is the second phase or stage of फोटोसिंथेसिस. सबसे पहले लाइट रिएक्शन होता है, देन डार्क रिएक्शन होता है. लाइट रिएक्शन का मतलब क्या है? दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसीलिए इसी को क्या बोलते हैं हम? लाइट रिएक्शन. क्लियर? एंड दिस रिएक्शन, डार्क रिएक्शन मीन्स this reaction takes place in presence of light as well as in absence of light. That means this is light independent process. Clear? So dark reaction is light independent process. Okay, and light reaction is light dependent process. डिपेंडेंट प्रोसेस. जो लाइट रिएक्शन है वो सनलाइट के प्रेजेंट में होता है, और जो डार्क रिएक्शन है वो सनलाइट के प्रेजेंट में भी होगा और अब्सेंस में भी होगा. क्लियर? लाइट रिएक्शन को हम और भी किस नाम से जानते हैं? तो लाइट रिएक्शन को बोलते हैं हम फोटो phosphorylation. This is also known as the photophosphorylation. Here photo means sunlight and phosphorylation means addition of phosphate to ADP, and that ADP convert into ATP, adenosine diphosphate. On adding inorganic phosphate converted into adenosine triphosphate, and this process takes place in the presence of sunlight. That's why it is photophosphorylation. Clear? So light reaction also known as photophosphorylation. Okay, and this reaction, dark reaction, also known as C3 cycle or C3 phase. Clear? Because here the first stable compound is 3 carbon containing compound formed, and that is the phosphoglyceric acid. ठीक है? 3 phosphoglyceric acid. Clear? So it is the first stable compound formed in the process of C3 cycle, dark reaction. That's why this cycle also known as the C3 cycle. And this process was discovered by, detailed by Melvin Calvin. So it is also known as Calvin cycle. इसीलिए इसको और भी किस नाम से जानते हैं? कैल्विन साइकिल. तो इसको हम कैल्विन साइकिल भी बोल सकते हैं, C3 साइकिल भी बोल सकते हैं, या C3 फेज बोल सकते हैं, या डार्क रिएक्शन बोल सकते हैं. और भी इसको क्या बोल सकते हैं हम? रिडक्टिव फोटोसिंथेटिक
कार्बन साइकिल, रिडक्टिव फोटोसिंथेटिक कार्बन साइकिल। क्योंकि इस साइकिल में क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिड्यूस होकर के ग्लूकोज बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, रिडक्टिव फोटोसिंथेटिक कार्बन साइकिल, आर केल्विन साइकिल, आर C3 cycle or C3 phase or dark reaction. Clear? And here light reaction known as the photophosphorylation, and this photophosphorylation is of two types. One is cyclic photophosphorylation and other is non-cyclic photophosphorylation. साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में फोटो सिस्टम फर्स्ट पार्टिसिपेट करता है, क्लियर। और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड दोनों इन्वॉल्व होते हैं, दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, क्लियर। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं कि लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है, वेयर लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो हम लोग जानते हैं कि जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, ये क्लोरोप्लास्ट ऑफ द सेल में होता है, and chloroplast is the kitchen of the cell. That's why we say the chloroplast as the kitchen of the cell. तो क्लोरोप्लास्ट की किस पार्ट में लाइट रिएक्शन और किस पार्ट में डार्क रिएक्शन होता है। तो लाइट रिएक्शन ये होता है थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन में, थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन ऑफ ग्रेना, ठीक है। तो जो ग्रेना होते हैं उनके थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन में फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड होता है, और यहीं पे क्या होगा, लाइट रिएक्शन होता है, क्लियर। और भी कहां पे होता है ये, स्ट्रोमा लैमेली, स्ट्रोमा लैमेली, क्लियर। तो स्ट्रोमा लैमेली में और थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन ऑफ ग्रेना में लाइट रिएक्शन होता है। वेयर डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस, डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है डार्क रिएक्शन, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, लाइट रिएक्शन में डिफरेंट टाइप के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, क्लियर। क्योंकि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ही क्या करते हैं, सनलाइट को ट्रैप करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट लाइक द क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, कैरोटीन, xanthophyll, fucobilin, phycocyanin, phycoerythrin. These are the different type of photosynthetic pigment, and these molecules, these pigments have the ability to trap the sunlight, to absorb the sunlight. तो लाइट रिएक्शन में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, क्लियर। और यहाँ पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन्वॉल्व नहीं होते हैं डार्क रिएक्शन में, नो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इन्वॉल्व, यहाँ पे कोई भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन्वॉल्व नहीं होता है, क्लियर। अब देख लेते हैं कि लाइट रिएक्शन में क्या बनता है। तो लाइट रिएक्शन के रिजल्टेंट ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दैट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ATP का फॉर्मेशन होता है, एंड NADPH2, दिस इज द रिड्यूसिंग पावर। तो निकोटिनेमाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट, हाइड्रोजन, क्लियर। तो NADPH2 और ATP का फॉर्मेशन होता है लाइट रिएक्शन में, क्लियर। और डार्क रिएक्शन में किसका फॉर्मेशन होता है, तो डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज दैट इज द कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज टाइप ऑफ सुगर, टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज
ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज फॉर्मेशन अकर्स। क्लियर? तो डार्क रिएक्शन के रिजल्टेंट ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और लाइट रिएक्शन के रिजल्टेंट एटीपी एंड NADPH2 का फॉर्मेशन होता है। लाइट रिएक्शन में फोटोलिसिस कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट करता है और ये फोटोलिसिस कॉम्प्लेक्स क्या करता है, वाटर का फोटोलिसिस कर देता है। और जब वाटर का फोटोलिसिस होता है तो फ्रॉम फोटोलिसिस ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल, one pair of electron plus one pair of proton plus half oxygen molecule, half O2 molecule प्रोड्यूस होता है। क्लियर? तो जो बाई प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का, दैट इज द ऑक्सीजन, ये कौन से प्रोसेस के थ्रू जनरेट होता है, लाइट रिएक्शन के थ्रू जनरेट होता है। क्लियर? सो बाई प्रोडक्ट दैट इज द ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। क्लियर? by the photolysis of water. Okay. और यहाँ पे फोटोलिसिस कॉम्प्लेक्स एब्सेंट होता है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे इसीलिए किसी भी ऑक्सीजन का इवोल्यूशन नहीं होता है। देयर इज नो फोटोलिसिस कॉम्प्लेक्स, सो देयर इज नो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, सो देयर इज नो इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एटीपी और NADPH2 का फॉर्मेशन हो रहा है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है, रिजल्टेंट ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम फोटोकेमिकल प्रोसेस। दिस इज द फोटोकेमिकल प्रोसेस और फोटोकेमिकल फेज है ये। और यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज हो रहा है, तो इसको बोलते हैं हम बायोसिंथेटिक फेज, बायोसिंथेटिक फेज। क्लियर? तो डार्क रिएक्शन क्या है, बायोसिंथेटिक फेज है क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। और लाइट रिएक्शन क्या है, फोटोकेमिकल फेज है, फोटोकेमिकल प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पे एटीपी और NADPH2 का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? सी नेक्स्ट,